आज बहुत खुशी की बात है, काफ़ी देर से इसी आराधना को हम लोग स्वागत किया था, जो आज परमेश्वर के कृपा से अच्छा हालात पर इसी दिन को हम लोग पहुँचाया है। बहुत खुशी की बात है, परमेश्वर से धन्यवाद हो। अभी परमेश्वर की पवित्र वचन सुनेंगे, मिजो भाषा से पहले पढ़ेंगे। मिजो तो लंगाई थांग कन बोचिया नते वांगिन थिल थी कन लाई में पोइन क्रिस्ता रोलिन मिंतिनुंग वेया खोंगाइना छंदम इनिता ए क्रिस्ता ईश्वा चुन अमारोल वे का मिन काय थोबिन वान मुनाते अमा नेना मिन ठुतीरता। अभी हिंदी से फिर पढ़ेंगे। जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में बैठाया। परमेश्वर अपना वचन हम सब के लिए आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, तूने अगुवाई किया है, दुर्घटनाओं से, बीमारों से, शैतानों से बचा करके जितना इतना आदमी तेरा पवित्र स्थान में आ सकने का कारण से तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारा कार्यक्रम को शुरू से अंत तक तेरे हाथ में सौंप देते हुए तेरे नाम महिमा करने के लिए, तेरे नाम को स्तुति करने के लिए हम लोग आया है। जितना हम लोग इसी गिरजा के अंदर में हम क्या है, हमारे विश्वास आगे बढ़ने के लिए तूने मदद कर। इस छोटे सा विनती यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अभी सचिव को बुलाएंगे, अपना मसीह का सचिव को बुलाएंगे। उसके बाद जो है मेलथुम कलेसिया का सचिव को बुलाएंगे। तुना कन मसीह संगति फेलोशिप सेक्रेटरी को कन कोबांगा चुन चुमिनुआ को मेलथुम कोठानिन सेक्रेटरी से तोरने चुन रनसोइंगा से ठांगे तूने लो सोमांग। सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। सबैला यीशु ख्रिस्ट को नाम जय मसीह। विंट लाइचु कन इन तिथियम दे वट्रंग पहनी कन मंग वेजो कनी साइ कम कोन मसीह संगति ट्रंगिन मित्रन पुइना चेंग सांग नि कंदोंगा कन लोम हेनी प्रोग्राम लोंगाय थांग पथियन नि चनु पथियन बेकिन खोम दार खत लेचन वे चेयरमैन उपार थंग मोया कमिटी मेंबर ट्रंतु tlangwal arlal ompuya sai khama kon masi sangati thu soitu hi evan ngur ngai zuali thu pu hi ke mai khong le thu tak le nun nakani johana bungsom pali changro zai pol hi limen masi sangati le tlangno masi sangati atangin omdoni pathian soina in limen pastor bial masi sangati mi tlong takin kan nei theizela alomom he moi hei voin chonu chu in khompo kan sha a zan lama he ai than hem zoki kan in khom le theitura te po be sei ila a tha ange hei bekin huai Sunday school hall ko ta khwan medical duty an oma taksalama har satna nei te kan oma ni chuan pan mei ni sela a tha ange in khom zong zong te tan hian thingpui buat sei le ani a in khom zong zong te in thau turin kan in som ani tin hei voin ta ya hian zamria ruai buat saya voin chonhoron in khom zong zong te tuma e lova ho kha kan rem ti lovani hei catering kan kova kan cha ne mangreng veu maya in hole si kha chuan sum kha kan seng khon chu mai do na chuwangin voin chonhoron in khom zong zong te kan zamria buat sai te mingkil pui thau turin kan som cheu ani e शुरू करने वाला को बुलाएंगे। तंतु लो सोमंग। सबसे पहले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह।
मैं मिजो भाषा से बाइबल पाठ पढ़ेंगे। पथियन तो थियंगली मिलोंगा ख्यांगू चंचिन छा मरकाजिया बुंग सोम परुक चांग सोम पंगा चंगा सोम परियात चंचिन छा मरकाजिया बुंग सोम परुक चांग सोम पंगा चंगा सोम परियात tin an hena khove zong zonga kalula thil siam zong zong hena chuan chanchin tha hi shil ro aringa baptisma changchu chandamin an omanga aring lo ero chu thiam lo changin an omang tin heng chin chiana te hian ring tu te chu achui ring tu te chu azui zelang ka mingin ram huai te an no chuakanga chong thar te nan chonganga rul te kutin an langa thina tur eng po in masela engma an tilovanga damlo te chunga an kutang an ngat anga an dam zelang atia lalpan athu kan chiarte kan zata mal min som sakrose lo chong trai u khongai na le zangai na khatlal pa kan pathian min mangai tu nangin min veng min ompoi kausan hotelal pa voini hun thatak te limen pastor bial masihi sangati mi te khengle theitura hun thamin na pe ka wang hen kan lo mai hena lom thu kan on thil cheni I thua kan muta kan khan lalpa I chanchin tha churam zong zonga shildar tura ring lo te hena chanchin tha thil siam zong zong te hena puang tura min tiangin limen pastor bial masihi sangati na rong bol na kan nei te hilal pa nangin mal min som sakla ti chuan voin chan nuwa kan in khom kan program I fakna hla kan sak tur te I thu soi kan ngai thak tur te mangin lalpa nangin mimal tin te min khoi thar liang che chung zong zong chu ifa pa la Jesu Krista mingin kan on dil che
स्थगित सुनाया है। उसके कारण से लिमेन फेलोशिप से धन्यवाद हो।
पिता यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह। अभी ये 2:15 मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। पिछले आराधना सभा में हम सुन चुका है कि प्रथम मनुष्य आदम और हवा ने परमेश्वर के नियमों को उल्लंघन किया। जब से हम सब पाप का संतान बन गया और हम परमेश्वर से अलग हो गए और हम गलत रास्ता में जा रहे हैं। हमारे विषय है मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हूँ। अभी हम गलत रास्ता में जा रहे हैं। गलत रास्ते से हम कैसे सही मार्ग की ओर जाएंगे, इसके बारे में इसी आराधना सभा में हम जारी करेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। और आज ये प्रभु से धन्यवाद हो क्योंकि हमारे बीच में ये नए विश्वासी आज जन प्रभु ने हमें दिया है। इसके लिए मेरा दिल तो कच्चा हो गया, खुशी के मारे रोने आ जाता है। ये हमारे शक्ति से नहीं है, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने कार्य किया है हमारे बीच में। हमारे छोटा सम्मेलन को प्रभु ने याद किया है, इसलिए हमारे बीच में अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल दिया है, इसीलिए हमारे बीच में ऐसा हो गया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ये हम सब पाप का संतान बन गया है, हम गलत रास्ता में जा रहे हैं। हम सही गलत रास्ता से हम कैसे सही मार्ग की ओर जाएंगे। परमेश्वर की वचन 2 जगह में से मैं पढ़ूंगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14 पद, और ये हमारे विषय है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:14 और 14:6। मिजौ तोंग लो एन दूतान पथियान थू कन ngai thanga Johanna bung thum chang sompali thu le Johanna bung sompali chang ru kan thu pui kha ania mun niami ka chiar don ani। आइए परमेश्वर की पवित्र बाइबल पढ़ेंगे, पढ़ना आरंभ करेंगे। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। और यूहन्ना 14:6 में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर अपना वचन हम सब के लिए आशीष करे। अभी सुनने में परमेश्वर की वचन सुनेंगे। ये पिछले आराधना सभा में हमने सुना है, वो जारी करेंगे। अभी 2:15 बज गया, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। अभी यूहन्ना 3:14 में हमने पढ़ा है, इसके बारे में पुराने नियम में गिनती में ये पूरी रीति से लिखा है, साफ लिखा है, स्पष्ट रूप से उसमें पढ़ने को मिलते हैं। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर के चुने हुए इस्राएलियों ने परमेश्वर से पाप करते हुए परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगा, इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों में 23-20 वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगा। बहुत से इस्राएली मर गए हैं और लोग मूसा के पास जाकर कहने लगा, हे मूसा, हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। इस्राएली लोग बहुत परेशानी में है क्योंकि उन लोगों के बीच में परमेश्वर ने 23-20 वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे।
सांप की डसने से बहुत से लोग इस्राएली मर चुके हैं और मरते रहते भी हैं। इसलिए उन्होंने अपना मुखिया मूसा के पास जाकर कहने का लगा, पहले परमेश्वर के विरुद्ध बात करते रहते हैं, परमेश्वर की ओर मन नहीं लगाते हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में परमेश्वर ने उन लोगों को सजा देने के लिए तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे। तब इस्राएलियों ने मूसा के पास जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहा। मूसा ने उन लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर मूसा ने प्रार्थना किया उन लोगों के लिए, वो सांपों को दूर करने के लिए। उसने देखने को मिलते हैं ये वचन में मूसा की प्रार्थना को परमेश्वर ने कैसे जवाब दिया है। अच्छा ठीक है मूसा, मैं वो सांपों को मैं 1 मिनट के अंदर में दूर करूंगा करके परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया है। क्या कहा है? क्योंकि परमेश्वर के सामने इस्राएलियों का मन कई बार कठोर हो चुके हैं, परमेश्वर की ओर मन नहीं लगाते हैं। परमेश्वर ने इतना सारी आशीष देने के बाद भी परमेश्वर की ओर मन नहीं लगाते हैं। इसीलिए उन लोगों के बीच में परमेश्वर ने तेज विष वाले सांप भेजे हैं। हम भी अपना मन कठोर कर परमेश्वर की ओर मन नहीं लगाएंगे तो किसी दिन में हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है। फिर परमेश्वर की ओर मन लगाना फिर हम चाहते हैं। उन्होंने भी मूसा से कहा और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने कैसे जवाब दिया है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा को बनवा कर खंबे पर लटका, जो सांप का डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। परमेश्वर के लिए वो सांपों को दूर करना कठिन काम नहीं है, 1 सेकेंड के अंदर में भी सब दूर कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेज विष वाले सांप की प्रतिमा को बनवा कर खंबे पर लटका, जो सांप का डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। इस्राएलियों के लिए सांप की डसने के लिए एक ही रास्ता है, वो लटकाया खंबे पर लटकाया हुआ सांप की प्रतिमा की ओर देखना। मूसा ने सांप की प्रतिमा को बनवा कर खंबे पर लटकाया, जो सांप का डसा हुआ उसको देख लेगा वो जीवित बचेगा। सांप के डसे हुओं में से जिसने उस सांप की प्रतिमा जो लटकाया हुआ उसकी ओर देखा वो जीवित बच गया। सांप की डसने से बचने के लिए कितना आसान है, कोई कठिन काम नहीं है, है ना। आजकल का मिजोरम में भी ये बरसात के समय में भी हर जगह में सांप निकला है। ज़्यादा लोग भी सांप काटने की खबर हमने सुना है, वो भी सांप ने काटा है, वो बड़ा हॉस्पिटल में ले गया, बहुत खर्चा करके इलाज किया है। कोई तो मरा है, कोई तो इलाज करने से बचाया है। लेकिन इस्राएलियों के लिए सांप की डसने से बचाने के लिए कितना सरल मार्ग परमेश्वर ने बनाया है। सांप के डसे हुओं के लिए बड़ा हॉस्पिटल में जाके बहुत पैसा खर्चा करके इलाज करना ज़रूरत नहीं है। जिस सांप की प्रतिमा जो खंबे पर लटकाया हुआ है उसकी ओर देखना, बस कितना आसान है, कोई कठिन काम नहीं है ना, कोई कठिन काम नहीं है। उस खंबे पर लटकाया हुआ सांप की प्रतिमा की ओर देखना, बस कितना आसान है। लेकिन कोई किसी का मन तो कठोरता है। सांप की डसने से वो लटकाया हुआ खंबे पर लटकाया हुआ सांप की प्रतिमा की ओर देखना नहीं चाहता, ऐसा सिर झुकता है और अपना रिश्तेदारों ने, अरे ऊपर देखो सांप की प्रतिमा जो लटकाया हुआ उसकी ओर देखो तो जीवित बचेगा करके कहा है। लेकिन ऐसा जबरदस्ती से करने से भी आंखें बंद करता है। वो लोग तो सांप की डसने से मर जाता है क्योंकि उनका मन कठोर है, परमेश्वर का आज्ञाकारी करना नहीं चाहता है, परमेश्वर का बात मानना नहीं चाहता है, वो लोग तो मरता है। जिसने सांप की प्रतिमा की ओर देखा वो जीवित बच गया। बहुत आसान है। उसी रीति से मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह भी क्रूस पर लटकाया है।
जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसी का है। आज हमारे बीच में ये भाइयों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता में स्वीकार करते हुए हिम्मत के साथ बपतिस्मा लिया है। ये लोग कितना हिम्मत है कि नहीं? यीशु मसीह पर विश्वास करना उतना कठिन काम नहीं है। इन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना है, वो बताया है, वो मन लगाकर यीशु मसीह के बारे में सुना है, मन लगाकर फिर उसके बाद फैसला लिया है, अरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना जान दिया है तो मैं क्यों नहीं अपनाएगा करके हिम्मत के साथ आगे बढ़ा है। देखो आज बपतिस्मा लिया है। परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दिया है, क्रूस पर लटकाए हैं। दीवार में भी हम लगाते हैं पोस्टर और कैलेंडर में यीशु मसीह जो क्रूस पर लटकाया हुआ है। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। परमेश्वर ने इतना कीमती तोहफा हमें दिया है। यीशु मसीह ने हमारे उद्धार किया है। हमारे अभी मंडली की ओर से गाना हम सुना है, बहुत अच्छा गाना है। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को। प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को शैतान की हाथ से छुड़ाने के लिए और शैतान की बंधन से हम आज़ाद करने के लिए और पाप से छुड़ाने के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का पवित्र खून बहाया है। पिछले आराधना सभा में हम सुन चुका है, प्रभु यीशु मर गया हो गया क्या? नहीं, तीसरे दिन में फिर जी उठा है। गाना में भी हम गाते हैं, मृत्यु पर विजय होकर फिर भी जिंदा हो गया करके हम गाना गाते हैं। यीशु मसीह फिर जिंदा हो गया। ये मुस्लिम धर्म मानने वालों ने तो ये नहीं मान सकता है कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है, ये नहीं मान सकता है ना। ये मुस्लिम के पास जाके कई बार मैंने बातचीत कर चुके हैं, उन्होंने ये मेरे सामने भी बताया है यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा है करके। आप लोग ने तो बोला ये हम नहीं मानता है, ऐसा बोला। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है। ये यीशु मसीह मुर्दों से जी नहीं उठा होता तो दूसरा देवताओं से कोई अंतर नहीं होता, लेकिन इसका ईश्वरत्व को प्रमाणित के लिए यीशु मसीह फिर जिंदा हो गया है, मृत्यु को विजय होकर जिंदा हो गया। देखो, यीशु मसीह का नाम लेने से दुष्ट आत्मा को भी भाग जाता है। यीशु मसीह का नाम लेने से शैतान भाग जाता है। शैतान को यीशु मसीह ने हरा दिया है। मेरे बारे में थोड़ा सा मैं कहूँगी। मैं मध्य प्रदेश में 1999 साल में मिशनरी काम करने के लिए अपने घर से निकल चुकी हूँ और मध्य प्रदेश में मैं 15 साल रह चुकी हूँ। गांव-गांव में जाके हम प्रचार करते हैं। अब विश्वासियों के बीच में शैतान लोगों को, गांव वालों को बहुत सताता है, बहुत डराता है। सपना में शैतान डराता है, रात में सोने नहीं पाया, खाना ठीक से नहीं खाया, कितना शैतान ने सताया है। वो लोग मेरे पास आकर प्रार्थना करने के लिए मुझे बुलाते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। विश्वास के साथ परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। शैतान को भी यीशु मसीह के नाम लेने से हारता है और भाग जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने हर चीज को हरा दिया है, शैतान और उसके कामों को। शैतान का लक्ष्य इंसान को नाश करना है। इसीलिए ये आज मूसा ने जंगल में सांप की प्रतिमा को बनवा कर खंबे पर लटकाया। इसराइलियों के लिए उस सांप की प्रतिमा की ओर देखा है तो सांप की डसने से बच गया है। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर लटकाया हुआ है उसकी ओर देखेंगे तो
क्या मिलेंगे? अनंत जीवन पाएंगे, सच्चा शांति पाएंगे। ये मोल से लेने का चीज़ नहीं है, मोल से नहीं ले सकता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना महान कार्य किया है, यीशु मसीह ने इतना महान हमें उद्धार दिया है। ये परमेश्वर की अनुग्रह की वरदान है। आज हमारे बीच में किसने परमेश्वर की अनुग्रह की वरदान को अपनाना ही चाहता? किसने अपनाना चाहता और किसने अपनाना नहीं चाहता? और भाइयों से मैं पूछती हूँ, मिजोरम का मुखिया मंत्री का नाम क्या है? कोई भी? मिजोरम का मुखिया मंत्री का नाम पुललधोमा। उदाहरण के लिए पुललधोमा आपके पास आकर फुकट से 5,000 रुपया आप लोगों को फुकट से दिया है, तो आप लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? खुशी से लेंगे, है ना? फुकट से 5,000 रुपया मुखिया मंत्री ने आपको देंगे तो आप लोग खुशी से लेंगे। और मेरे ख्याल से आप लोग खुशी के मारे आप लोग चुप नहीं रह सकेंगे। उसी दिन में 50 और 5,000 रुपया मुखिया मंत्री ने आपको फुकट से दिया है, तो रात में खाना खाने के बाद तुरंत अपना घर का फ़ोन लगाएंगे, है कि नहीं? मम्मी, आज मिजोरम का मुखिया मंत्री मेरे पास आकर 5,000 रुपया फुकट से मुझे दिया है करके खुशी के मारे आप लोग चुप नहीं रह सकेंगे। अपना दोस्तों से, अपना पड़ोसियों से, अपना रिश्तेदारों को बताएंगे, है कि नहीं? 5,000 रुपया। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें तोहफा दिया है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो मोल से लेने का चीज़ नहीं है। ये रूमाल मेरा है, पहले दुकानदार के पास था, उसी समय में रूमाल मेरे नहीं है, मेरे पसीना भी नहीं पहुंच सकता है क्योंकि ये दुकानदार का है। देखने में मुझे अच्छा लगा है, दुकानदार से मैंने पूछा ये कितने का है? उसने भाव मुझे बताया तो पैसा दे के मैंने ये खरीद लिया है। अभी ये रूमाल मेरा हो गया, पसीना भी पहुंच सकते हैं क्योंकि मैंने ये मॉल से लिया है, मैंने खरीद लिया है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने शैतान की हाथ से अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह का पवित्र खून से हमको खरीद लिया है। देखो, हमारे पालतू जानवरों ने भी अपना मालिक को पहचानता है, हमने अपना मालिक को क्यों नहीं पहचानता है? आज हमारे भाइयों ने तो अपना मालिक को पहचान कर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता में स्वीकार करते हुए आज बपतिस्मा लिया है। यह हिम्मत की बात है। लेकिन आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, ये मसीह में बन गया है, बपतिस्मा लिया है, ये 1-2 महीना के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए नहीं, जिंदगी भर उसके पीछे हिम्मत के साथ चलने के लिए आप लोग ने ये फैसला लिया है, बपतिस्मा लिया है। और आगे का समय में क्या होगा? हिंदी सही दो लो मिजो चंगन सही लो ये चलनी में सामने चले खान ये ककल स्वाक तोर ही संडे या हिलाई वेला हियान अनमानी चोंग का सही कर लो अन पुई थियाम ही अवाक क्वाल वेया हैंग हो या कन क्वाल थी ननी अकन क्वाल खकन दिन नंग फुआ खत्यांग खान हैंग हो या हर सन्नान लतोक दोन चोंग चाय पुयन गाई लतोकनी। इसीलिए आप लोग आज बपतिस्मा लिया है, ये हिम्मत के काम है। प्रभु यीशु मसीह ने डरपोक वालों को अपना चेला के लिए नहीं चुनता है। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए यीशु मसीह ने डरपोक वालों को नहीं चुनता है। आज आप लोग हिम्मत वालों को प्रभु ने आपको चुना है, आज हिम्मत के साथ बपतिस्मा लिया है। और आगे के समय में क्या क्या होगा, कुछ हो सकता है। किसी दिन में तो आप लोगों के पास मुल्ला भी आएंगे, कुछ बोलेंगे आप लोग ने क्या किया, बपतिस्मा लिए है, आप लोग क्रिश्चियन को जोड़ा है करके आप से कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन आप लोग कुछ नहीं डरना। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ जगत के अंत तक।
प्रभु आपके साथ रहने के लिए वादा किया है। हमारे परमेश्वर अपना वादा को निभाने वाला परमेश्वर है। उसने हमसे वादा किया है कि कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। जैसे माता अपने बच्चों को प्यार से संभालती है, वैसे यीशु आप लोगों को संभालेगा। क्यों नहीं संभालेगा? लेकिन डरपोक नहीं होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। कोई भी आपको धमकाने के लिए, कोई भी आपके सामने आ सकते हैं, कैसे भी धमकाएंगे, लेकिन आप लोग मत डरना, आपके तरफ परमेश्वर है। प्रार्थना करना भूलना नहीं चाहिए। प्रार्थना करना भी, आप लोग अभी भी बपतिस्मा लिए हैं, प्रार्थना कैसे करना है वो भी आप लोगों को वहाँ में आकर सिखाएंगे। ये प्रार्थना करना ज़रूरत है। आज हम सब सुबह खाना खा के आया ना, खाना खा के हम आए और शाम के टाइम में भी और खाएंगे। कभी दिन में 2 बार खाना हम खाते हैं, कोई नहीं तो 3 बार खाना खाते हैं। हमारे शरीर के लिए प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता है। उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। परमेश्वर की वचन और प्रार्थना। मसीही जीवन में जीना आसान नहीं है। आसान से यीशु मसीह को स्वीकार कर बपतिस्मा लिया है। जैसे इस्राएलियों के लिए ये सांप की डसने से बचाने के लिए बहुत आसान काम है, जो खंबे पर लटकाया हुआ सांप की प्रतिमा की ओर देखना, बस कितना आसान है। लेकिन उसके बाद सांप की डसने से बचाने के बाद परमेश्वर का इच्छा पर जीवन बिताना है, फिर पाप नहीं करना है। कई बार परमेश्वर से पाप करते हुए परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगा है इस्राएलियों ने। उसी प्रकार से हमने भी कई बार परमेश्वर से हमने पाप किया है, परमेश्वर की ओर मन भी नहीं लगाते हैं। आज हमारे भाइयों ने हिम्मत से बपतिस्मा लिया है। आगे का समय में कुछ धमकाने वाला भी आ सकता है, कोई किसी ने आपको धमका भी दे सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। उसकी ओर मन लगाना है। परमेश्वर की ओर मन ना लगाने वालों को हमारे पवित्र बाइबल में तो धनी व्यक्ति कहता है। धनी व्यक्ति के लिए परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना नामुमकिन है। इसीलिए ये हमारे पवित्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलते हैं। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग का झील में डाला गया। हे प्रियो, आज इन भाइयों का नाम तो जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। प्रभु की धन्यवाद हो। इन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। लेकिन आपकी तरफ से भी ये कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? प्रभु के लिए ईमानदारी से जीवन बिताना। आज बपतिस्मा लिया है, ये 1-2 साल के लिए नहीं, 3-4 साल के लिए नहीं, जिंदगी भर उसके पीछे चलने वाला बनना चाहिए, बिना डर के, हिम्मत के साथ। और आप लोगों के लिए ये कलीसिया को भी प्रार्थना करेंगे। आप लोगों के लिए इधर उधर का कलीसिया से ये भी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से आप लोगों को हम मदद करेंगे। ये आप लोग ये डरना नहीं, ये आप लोग यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह आपके साथ है। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा। इसीलिए आगे का समय में भी आप लोग प्रभु के लिए ईमानदारी से रहना। मेरे सहेली को मेरे लिए ईमानदारी से रहती है तो मैं हमेशा मेरे सहेली से प्यार करती थी। लेकिन एक मेरे सहेली तो इधर उधर में क्या क्या करते हैं, चुगली लगाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? आप लोग भी परमेश्वर के लिए ईमानदारी से रहेगा तो प्रभु आपको क्यों
छोड़ेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जैसे माता अपने बच्चों को संभालती है प्यार से, लेकिन इंसान का प्रेम कभी टूट जाता है, पति पत्नी का प्रेम भी टूट जाता है, भाई बहन का प्रेम भी टूट जाता है, भाई भाई का प्रेम भी कभी टूट जाता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अटूटता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसीलिए आज आप लोगों ने तो सच्चाई मिल गया है। यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। आप लोग ने तो सच्चाई मिल गया। सच्चाई पर चलने के लिए इधर उधर मत देखना, यीशु मसीह को देखना। और जहाँ मसीह के लोग प्रोग्राम करता है, कुछ कुछ करता है, वहाँ में भी आप लोग 1-2 दिन का छुट्टी भी लेके उन लोगों के बीच में शामिल करना। आप लोग विश्वासी बनने के बाद, मसीही बनने के बाद अकेला रहेगा, मसीहियों के साथ उनके साथ संगति में नहीं जाएंगे तो किसी दिन में शैतान आपको खींच सकते हैं। इसीलिए हमेशा कलीसियों के साथ और फेलोशिप के साथ जहाँ प्रोग्राम रखता है वहाँ में जाना। एक दिन छुट्टी लेना मुश्किल काम नहीं है। प्रभु ने तो अपना जान तक दिया है, यीशु मसीह ने। हमने तो एक दिन काम से छुट्टी लेना भी मुश्किल समझता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे विश्वास आगे बढ़ने के लिए ये हमने भी कुछ करना है। हमारे कार्य और कर्तव्य क्या है, ये धीरे धीरे आप लोगों को ये प्रभु की अगुवाईता से हम सिखाएंगे। इतना ही मैं कहूँगी। परमेश्वर अपना वचन को हम सब के लिए आशीष करे। आमीन। ला कंसांगा सुमसरी पसरीना तो प्यार क्या सागर है। कंसांगा कंसक्तोपा हिंदी इन ललपा टोंगटाइना कंसें कंहुन कंति तोबदोनिया। प्यार किया मुझको, प्यार किया मुझको, प्यार किया मुझको, प्यार किया मुझको, यीशु प्यार किया मुझको। हरि हरि प्रयोजन प्रभु तेरा सहारा, हरि प्रयोजन प्रभु तेरा सहारा, प्रभु तेरा प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करेंगे। हे हमारा पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, कि उनके राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन।